Hello guys, good morning to all of you, and now I am going to get discussed about the Torsori's theorem or velocity of a flux. So this is Torsori's theorem. So what is velocity of a flux? So according to this, let this is a tank in which liquid filled up to its bottom to top in this way. Its height is capital H. Okay, so velocity of a flux. What is velocity of a flux? So whenever any fluid, any liquid is ejected or emitted from any hole with some horizontal velocity, so that this horizontal velocity is known as velocity of a flux. So according to this, let me consider this is a hole from where this liquid is emitted, this velocity, and this is the horizontal velocity ux, and it fall down or strike on the ground within some time interval and with some horizontal range like x and p. Okay, so the velocity of a flux, it is the velocity or it is that horizontal velocity by which any fluid, any liquid is ejected from any hole of any tank. Okay, किसी भी टंकी से, टैंक के किसी भी होल से जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लिक्विड बाहर निकलता है, उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. इसको क्या बोलेंगे? इफ्लक्स वेलोसिटी. एंड दिस थ्योरम इज नोन एज टॉर्सोलीज थ्योरम. ओके, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कैसे क्या वैल्यू होगी Vx की, सॉरी Ux की, टाइम कितना होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज कितने डिस्टेंस पर जाकर ये लिक्विड ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा. सो लेट वी कंसीडर दिस इज अ टैंक इन विच whose height is capital H and pressure at its open end is P1 equals to P and velocity at end is G. So here P1 equals to P and V1 equals to G, whereas H1 equals to complete height हो जाएगी यहाँ तक H. जब ये लिक्विड इस होल से बाहर निकलेगा तो ये लेवल ग्राउंड पे आता जाएगा, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कांटेक्ट इस लेयर पर ऐसा ही रहेगा. और जैसे ये लिक्विड इस लेवल तक आ जाएगा, मींस एट डेप्थ स्मॉल एच, तो ये लिक्विड का फ्लो होना अब यहाँ से रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये होल ऊपर हो जाएगा और लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर भी जैसे जैसे ये आता जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कांटेक्ट वही रहेगा. इट मींस P2 equals to P. So P2 will be P. V2 equals to V मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे मान लीजिएगा. Vx equals to V and H2 equals to ग्राउंड से ही हाइट लेंगे, पूरी हाइट अब यहाँ से होल तक के लिए बचेगी H माइनस स्मॉल h. So using the Bernoulli's theorem, P1 plus 1 by 2 rho V1 square plus rho GH1, P2 plus 1 by 2 rho V2 square plus rho GH2. According to this, this is P 1 by 2 rho into 0 square plus rho GH equals to P plus 1 by 2 rho V square plus rho G capital H minus small h. So it will be 0 plus rho GH equals to 1 by 2 rho V square plus rho GH minus rho G small h. It will be cancel out. 1 by 2 rho V square equals to rho GH आ जाएगा. So V square equals to 2GH. So we can also write this V equals to root over 2GH. So this is the value of efflux velocity. Okay. ये इफ्लक्स वेलोसिटी की वैल्यू देखिएगा. जैसे ये लिक्विड ओपन एंड पर यहाँ पर है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर जो होगा P1 P है. जैसे जैसे लिक्विड का लेवल स्लोली एंड स्लोली दिस लेवल ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज एंड कम टू एट दिस पॉइंट. ओके, लेट वी कंसीडर दिस इज अ पॉइंट A and this is a point B. So the pressure will remain same. Okay,
P2 इक्वल टू, ये प्रेशर चेंज कब होता, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्ज कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर तो क्या है, सीधे लेवल डिक्रीज करता आ रहा है, कॉन्टेक्ट में जो है वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर P2 है। तो P1 है, V1 ओपन एंड पर वेलोसिटी 0 है और हाइट कंप्लीट हाइट है ग्राउंड से कैपिटल H, और P2 हो जाएगा V2 यहाँ पर फ्लक्स वेलोसिटी Vx इक्वल टू V है, H2 ग्राउंड से हाइट ये हो जाएगी। यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू एंड सॉल्व दिस, V इक्वल टू √2gh। क्लियर? नाउ हाउ मच टेकन टाइम by this liquid to fall in the ground, to strike on the ground, so it will be equal to the time h minus small h equals to u by t plus half gt square. So this is horizontal velocity, तो यहाँ पर vertical velocity अगर लिखना चाहें तो क्या होगी 0, so h minus h equals to 0 plus half gt square, so 2h minus small h by g equals to t. This is the time, and the range or horizontal distance so it is equal to x equal to vx into t, horizontal velocity जितनी थी वो into time interval, so x equal to ये थी 2gh into time आ गया है 2h minus small h by g. So according to this we can write this 2gh into 2h minus h by g. So this is equal to 2 in bracket h capital H minus small h, x equals to 2 root over h capital H minus small h. This is the range. So now let me discuss what will be the horizontal range, or for the horizontal range what is the value of small h, in which point this hole be situated, कहाँ पर ये होल इस बना होना चाहिए जहाँ से कि लिक्विड इजेक्ट करे, इमिट करे बाहर, और वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल लेंथ कवर करे. सो लेट मी डिस्कस हियर for x max. So we know that x equals to 2 under root h capital H minus small h. तो यहाँ पर वैरी क्या है, देखिए कैपिटल एच तो कांस्टेंट वैल्यू है, वैरी कर रही है स्मॉल एच, इसी के बारे में है कि ये होल कहाँ पर है. इट मीन्स स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो, कहाँ पर होल हो. तो इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एच बोथ साइड. सो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एच इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए. फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा. तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन. ओके, सो इट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट एच इंटू 1 बाई 2 रूट एच माइनस एच इंटू इसका सेकंड डेरिवेटिव माइनस 1, चेन रूल से कर देंगे, प्लस ये ऐसे रहेगा एच माइनस स्मॉल एच इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एच इक्वल टू डी एक्स बाई डी एच. सो इट विल बी इक्वल टू 2 और 2 नीचे से अंडर रूट एच माइनस एच इंटू अंडर रूट एच, एलसीएम हो जाएगा. सो कैंसिल आउट एच आ जाएगा और ये माइनस साइन प्लस 2h कैपिटल H माइनस एच बचेगा डी एक्स बाई डी एच. ओके, सो ओके दिस इज द x, वैल्यू ऑफ x, differentiate with respect to small h both side. So this is the product rule, first function into second function, first d by dh second plus second d by dh first. So this differentiation is this and second derivative minus 1 and its differentiation is this. After solving, so for maxima minima आपको पता है इस तरह से होता है.
यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो, यहाँ पर आकर के स्लोप की वैल्यू क्या हो जाती है, dy/dx = 0। तो यहाँ पर स्लोप x और h के रिगार्डिंग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx/dh = 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। तो ये चेक करेंगे इस वैल्यू को पुट करके। सो thus dx/dh = 2 कैपिटल H - 2h अपॉन 2 √h - स्मॉल h, और इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा h - 2h अपॉन √h स्मॉल h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा h - 2h = 0, h = 2 स्मॉल h, या स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी h/2। तो मैक्सिमा वैल्यू के लिए जो h की वैल्यू हो वो क्या हो, कैपिटल H/2 होनी चाहिए। इट मींस एट द मिड पॉइंट अगर यहाँ पर है देन x मैक्स क्या हो जाएगा, देखिएगा x की वैल्यू क्या थी, √h स्मॉल h। ओके, सो x max will be equals to 2 h/2 into h minus h/2। so 2 h/2 into ये भी सॉल्व होके h/2 आ जाएगा, तो एक h/2 बाहर आ जाएगा, तो x मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल H की। इट मीन्स अगर किसी भी टैंक के मिड पॉइंट सेंटर पर बिल्कुल होल है तो लिक्विड हॉरिजॉन्टल कितनी लेंथ पर गिरेगा जाके, जितनी उस टैंक की हाइट है एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ पर मैक्सिमम लेंथ कवर करते हुए गिरेगा। सो दिस इज द प्रूफ एंड दिस इज द टॉर्सियली थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सॉल्व टाइम टेकन टू द स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड ऑफ लिक्विड, horizontal length, maximum length, okay, and efflux velocity.